Good morning, students. Welcome back to my video. I am Saurabh Moore, going to teach you computer. In previous video, we have discussed entering a function in a cell. In previous video, we have discussed how we can enter data in a cell. डेटा एंड फंक्शन। पिछले वीडियो हमने पढ़ा कि किसी सेल में फंक्शन को किस तरीके से हम इंटर कर सकते हैं। वी नो दैट वी कैन इंटर functions by two methods, manually and using AutoSum menu. Manually we can enter function by clicking on the cell and directly write the function on that cell, and using AutoSum menu we can also enter function. In AutoSum menu it is given, the AutoSum menu is given in home tab under editing group. Now today we will discuss sorting of data in MS Excel. Today we are going to learn sorting of data in MS Excel. आज हम डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे MS Excel में। सॉर्टिंग क्या होता है ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। Sorting is the process of arranging data into a meaningful order so that they can analyze it more effectively. Sorting means the process of arranging data in a particular order. Sorting means arranging data in a particular order, like ascending, descending, smallest to largest, largest to smallest, A to Z, Z to A, etc. सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना, जैसे A to Z, Z to A अगर डेटा अल्फाबेटिकल है, या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह के डेटा का अरेंजमेंट जो होता है उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। ताकि हम सॉर्टिंग डेटा को इसलिए किया जाता है ताकि डेटा को आसानी से एनालाइज किया जा सके, उसको आसानी से समझा जा सके। So we can sort data in different ways for different type of data. डेटा जिस तरीके से अलग अलग हो उस तरीके से हम डेटा को अलग अलग वे में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे sorting textual data into alphabetical order from A to Z, from Z to A. If the given data in a form of text, we can sort data in Z
फ्रॉम Z टू A order or Z to फ्रॉम A to Z और Z to A order। अगर डेटा टेक्स्ट में हो तो उसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, A to Z अल्फ़ाबेटिकली या Z to A। इस तरीके से हम टेक्सचुअल डेटा को अरेंज कर सकते हैं। सेकंड, sorting numeric data in a order from smallest to largest or from largest to smallest। If the given data is in form of numbers like 1 to 3, so we can arrange, we can start the way smallest to largest or largest to smallest। अगर डेटा नंबर में हो जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हम उसको दो वे में, टू वेज में अरेंज कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट, सॉर्टिंग डेटा डेट वाइज फ्रॉम ओल्डर टू न्यूएस्ट और फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और newest to oldest। If given data is a date, so we can arrange data date wise, oldest to newest, oldest to newest और newest to oldest। अगर डेटा जो है वो डेट हो, डेट उसमें मेंशन हो, या डेटा जो है वो डेट हो, उसको हम ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट या न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट इस फॉर्म में डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं। सॉर्टिंग डेटा और sorting data on the basis of multiple columns through the sort dialog box। The fourth way of sorting data in MS Excel is sorting data on the basis of multiple columns or through the sort dialog box। We can also sort data on the basis of more than one column, means multiple columns, multiple rows। हम डेटा को कई सारे कॉलम या रो के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। सिंगल एक से लिया एक कॉलम या एक रो के नहीं, बल्कि कई सारे कॉलम या रो के बेसिस पे भी उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको सॉर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। Sorting data in alphabetical order। If the given data in form of text, we know that we will arrange, we can arrange data from A to Z, from A to Z or Z to A if the given data in alphabetical। अगर डेटा जो हमारा है जिसको हम अरेंज करना है, जिसको हमको सॉर्ट करना है, वो डेटा अल्फ़ाबेटिकल हो, अल्फ़ाबेट हो, ABCD इस तरीके से, तो हम डेटा को दो तरीके से टू वे में
अरेंज कर सकते हैं फ्रॉम Z to A और फ्रॉम A to Z. Arranging data in alphabetical order is the most common type of sorting done in MS Excel. डेटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप का सॉर्टिंग MS Excel में होता है. द स्टेप्स टू सॉर्ट डेटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर फॉलो. Select the cell in a column you want to sort. Click on Home tab in the editing group. Click on Sort and Filter button. From the list appears, select A to Z option. The record will get sorted in ascending order of the student name. If you want to arrange data, if you want to sort data in alphabetical order, first select the data. Like here, given data, first select the data. Step 1 is select data. पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट डेटा. हमको सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना है. ओके, किसी भी वे में डेटा को अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉरी सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से. ये डेटा हमको पहले सेलेक्ट करना है. स्टेप 1 क्या होगा? सेलेक्ट डेटा. देन होम टैब, सॉरी ऑन होम टैब, क्लिक ऑन होम टैब. स्टेप 2 क्या होगा? क्लिक ऑन होम टैब. ये आपको होम टैब दिख रहा है, इस पे हमको क्या कर देना है? क्लिक. सेकंड जो होगा स्टेप वो क्या होगा? क्लिक ऑन होम टैब. सबसे पहले क्या करेंगे हम? स्टेप 1 सेलेक्ट डेटा, देन क्लिक ऑन होम टैब. अंडर एडिटिंग ग्रुप, ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? एडिटिंग ग्रुप. इन एडिटिंग ग्रुप sort to A to Z and sort Z to A option is given. अब हमको इस A to Z या Z to A ऑप्शन से जिस भी ऑर्डर में हमको डेटा को क्या करना हो, अरेंज करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे. हमारा ये डेटा उस ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा. क्लियर? So arrange data in alphabetical order. First select data 1, select data. Second, click on home tab. Click on home tab. Third, in editing group select sort A to Z or sort Z to A ऑप्शन. स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले सेलेक्ट डेटा. स्टेप 1 सेलेक्ट डेटा. सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेटा को सेलेक्ट करेंगे. स्टेप 2 क्लिक ऑन होम टैब. फिर हम किस पे क्लिक करेंगे? होम टैब पे. थर्ड, इन एडिटिंग ग्रुप सेलेक्ट sort A to Z or Z to A ऑप्शन. ओके, समझ में आ गई होंगी चीजें. क्या करना है हमको? सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, होम टैब पे क्लिक करना है और फिर हम इसको एडिटिंग ग्रुप पे क्लिक करेंगे. और एडिटिंग ग्रुप पे क्लिक करने के बाद sort A to Z या sort Z to A ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. ये डेटा टैब में भी चीजें
अवेलेबल हैं। डेटा से भी हम इसको कर सकते हैं। डेटा टाइप में भी सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप जो दिया है उसमें सारी चीजें दी गई हैं। सॉर्ट डेटा इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। अब जो डेटा है वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में हो, न्यूमेरिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, यानी जो डेटा दिया गया हो वो इस तरीके से 1 2 4 8 इस तरीके से नंबर में हो, तो हम उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, वी कैन सॉर्ट इन अ data in a worksheet on the basis of field containing numerical data. So the data get sorted in ascending or descending order. If the given data are our data is in form of numbers, numerical data, so we can arrange data, we can sort data in ascending or descending order. अगर डेटा नंबर में हो तो हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। स्टेप्स क्या होंगे, वेरी इजी, जो आपको हम पीछे बताए थे वही पूरे सारे स्टेप्स हैं। बस लास्ट में जो ये आप सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे, अब जो हम ऑप्शन यूज करेंगे वो ऑप्शन होगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेट्स सी वन स्टेप। फर्स्ट, सबसे पहले किसी डेटा को क्या करेंगे, हम डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। हमको सॉर्ट करना हो डेटा को, फिल्टर करना हो डेटा को, फॉर्मेट करना हो डेटा को, सबसे पहले हमको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट करना है। सेकंड क्या करेंगे, हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन होम टैब। सेकंड ऑप्शन क्या करना है, क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब। थर्ड, इन एडिटिंग ग्रुप सेलेक्ट sort smallest to largest or sort largest to smallest ऑप्शन। अब डेटा को न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो, सॉर्ट करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे। यानी जिस डेटा को हमको सॉर्ट करना है डेटा न्यूमेरिकल होना चाहिए, तब तो उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो उस डेटा को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब पे हम क्लिक करेंगे। होम टैब क्लिक करने के बाद एडिटिंग ग्रुप में होम टैब के ऑप्शन दिया होगा सॉर्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हमको जिस भी ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना होगा वो ऑर्डर हम सेलेक्ट करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करना होगा तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अगर हमको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, डेटा को अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर हमको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, सॉर्ट करना हो, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना हो
तो क्या सेलेक्ट करेंगे? अरेंज डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेलेक्ट which option? Sort largest to स्मॉलेस्ट। समझ में आ गई चीजें? अगर हमको डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर असेंडिंग करना हो तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तब हम सेलेक्ट करेंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके।